Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C and D classes. Learners, here I have taken one book. That book name is Communication Skill Second. And from this book I have select one topic. That topic is agenda. So learners, we have to discuss about the topic of agenda, and I think if you have in your mind such like this question, what is agenda and what is purpose of agenda, and what is the necessary of agenda, in this condition you will be able to understand about agenda. So learners, now we start here about the agenda. Learners, agenda is a list of things to do. The word agenda, such like see on your screen, this word is the plural of the Latin word agendum. Learners, just you seeing here, Agendum. Agendum. Agendum is Latin word and it is English word. And this word is also originated from the word agendum, which literally means something to be done. And if you go deep about to understand agenda, you will find it has three content. First is a plan, a plan, and second is tool to manage time, tool to manage time, and third is already you will find to line up event or thing to do. So learners, and if you want to know more about, you will find an agenda is a list of activities to be done in an ordered sequence. It meeting in meetings, agenda refers to activities and topics that need to be discussed or performed at a particular time, or the things to achieve during the meeting. The agenda is also used to determine the goal of a meeting. So hi learners, just you see on your screen, just here written purpose of agenda. So learners, I will tell you the purpose of agenda. The main purpose of an agenda is to give the participant a clear understanding of the meeting or subject at hand and logically guide the participant with the whole process. It also makes the participant be familiarized with the topic to be discussed. Hi learners, now we discuss here importance of agenda. So learners, here just you see importance of agenda. A well structured meeting agenda is a valuable tool for ensuring that meeting achieve desired result within the time allotted. The outline of activities to be carried out as well as the list of a specific topic to be discussed should be aimed at guiding the participant through the meeting. Therefore, an agenda plays a significant role in ensuring that the meeting is productive. So, learners, now we discuss here given four points out: first, second, third, fourth. And learners, we take here reduce wasted time and resources. It is of first importance of agenda reduces wasted time and resources. So learners, agenda is a very important
as it helps the meeting organizer to save his time as well as attendance time. A well planned agenda is a perfect tool of time management. As an officer, manager, owner, you need to hold regular and important meeting. Learners, now we start here. Second, allows other speaker to prepare. So learners, just try to see here. Agenda gives proper space to the guest and other speakers for putting their views on mentioned topics. Having an agenda is courteous to other guests you may have included in the meeting. It can also help invited speakers prepare for when and what they will talk about. So learners, now we start here. Just third, increase participants. It is very important topic for agenda with a clear outline of what is going to be talked about. Implies will feel free to participate. Included time for question and answer about what was discussed. Also add a line time item to the agenda for staff members to bring up issues they feel are important. When employees are valued and empowered, they are more loyal and productive. Learners, now we start here. Just fourth is keep you on track. Learners, agenda keeps a meeting up to the point and lined. It is for easier to stop time wastage, stay focused, and get back on track. Learner, it was the importance of agenda. So learners, now we start in the next page the format of an agenda. So learners, just we see here format of agenda. So learners, it has many contents. Just you see here, it is points we have to discuss. It is based on format of agenda. Learners, an agenda normally includes the following elements. It is the general format. Learners, we have to discuss here. First is here मीटिंग एजेंडा टाइटल. लर्नर्स, जब भी हम किसी एजेंडा को लिखते हैं तो उसके मध्य में एट द टॉप मतलब ऊपर, और कह रहा है यहाँ पे जो सेंटर में बीचों बीच में हम जो हमारा एजेंडा होता है मीटिंग का, एजेंडा मीटिंग का टाइटल हम पेज पे क्या करते हैं, उसको मुख्य रूप में ऊपर से बीचों बीच में लिखते हैं. लर्नर्स, दूसरा यहाँ पे कह रहा है मीटिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पज, और उसके बाद से हम जो उद्देश्य रखते हैं मीटिंग का, जो एजेंडा का, उसका वहाँ पे विवरण देते हैं. जो दूसरा है लर्नर्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंडा. उसके ऑब्जेक्ट के उसके जैसे नीचे हम क्या कहते हैं, एजेंडा का जो हमारा जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य का हम वहाँ पर विवरण देते हैं. लर्नर्स, यहाँ पे उसके बाद से हम डेट लिखते हैं. कह रहा फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑफ करस्पॉन्डेंस, अर्थात जो कुछ भी यहाँ पे लाया गया, बताया गया, जो कुछ भी दिया गया उसके बारे में, डेट के बारे में हम वहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देते हैं. लर्नर्स, यहाँ पे बता रहा उसके नीचे लोकेशन द प्लेस ऑफ मीटिंग. हम जब इसको एक एजेंडा का एक स्लिप तैयार कर रहे होते हैं उस टाइम में हम लोकेशन को भी उसमें क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं कि किस जगह पे हमारी जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, उस कार्यसूची को लेकर के जो हमारा मीटिंग है किस स्थान पे है, उस स्थान का भी नाम हम उसमें मेंशन कर देते हैं. उसके बाद से लर्नर कह रहा है टाइम, द एक्चुअल टाइम ऑफ कंसेंटमेंट ऑफ द मीटिंग, और एजेंडा के थ्रू कार्यसूची को जो हम एक मूर्त रूप देना चाह रहे हैं उसके लिए एक टाइम का भी निर्धारण कर देते हैं कि
मतलब दिस प्लेस पे, चाहे उस प्लेस पे, जैसे भी इस समय में यह हमारा मीटिंग हैपनिंग होना है, तो टाइम को भी हम वहाँ पर बता देते हैं। लर्नर्स यहाँ पे बता रहा है मीटिंग टाइप्स, क्योंकि जब हम कहीं पे किसी एजेंडा को लेकर के किसी मीटिंग को रखते हैं तो उस मीटिंग के दौरान किस किस प्रकार का हमको रखना है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कशन और असाइनमेंट, 3 तरह के लेकर के इसको कि किस प्रकार का हमारा क्या है मीटिंग है, उस मीटिंग के उद्देश्य को भी उसमें हम कंफर्म कर देते हैं, ताकि जो भी अगला हमारा वक्ता होता है, चाहे बताने वाला होता है, चाहे उसको सुनने वाला होता है, वो अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर कर ले। लर्नर्स आगे हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि टाइम को लेकर के यहाँ बताया, इसके प्रकार को लेकर बताया, पुनः कह रहा है टाइम ऑफ अराइवल, अर्थात टाइम टू बी गिवन द मीटिंग, और यहाँ पे मीटिंग में कब आना है, मीटिंग में आने का टाइम भी वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, निर्गत कर दिया जाता है, उसमें बता दिया जाता है। लर्नर्स आगे देखते हैं टाइम एडजर्नमेंट, टाइम द मीटिंग एंड्स, अर्थात कितने बजे तक मीटिंग हम ओवर कर देंगे, इस टाइम को भी उसमें क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। लर्नर्स आगे देखते हैं अटेंडेंस नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, और कितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं विद देयर नेम, उनके नाम के साथ हम वहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। और लर्नर्स आगे देखते हैं जो लिखा है अटेंडेंस के बाद जो हमारे हेडिंग है, सब हेडिंग के तहत लिखा है प्रिपरेशन फॉर मीटिंग, मीटिंग में किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, इस चीज़ को बताया गया क्या कि प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, अर्थात यहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं बताया गया था कृपया सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। जो लोग यहाँ पे मतलब अटेंडेंस होते हैं, जो लोग उपस्थित होते हैं, उनको दे दिया जाता है कि आप इस मैटर को पढ़ लीजिए। प्लीज़ ब्रिंग थिंग्स सपोर्ट टू बी कैरिड दैट डे, और इस चीज़ को उस दिन पे क्या करना है, लेके आना है। एक्शन आइटम, और कार्य करने के मतलब वहाँ पे क्या तरीके कह सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रकार होते हैं, इस चीज़ को भी हम बता देते हैं। सो लर्नर्स नेक्स्ट पेज पे हम इसी जो हमारा एक फॉर्मेट है लर्नर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जो एक बेस्ड हमारा फॉर्मेट ऑफ एजेंडा है, इस फॉर्मेट ऑफ एजेंडा पे हम ले करके एक एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, और उसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट ऑफ एजेंडा है, जो एक्चुअल में हमारा जो एक एजेंडा है, दोनों में हम कंपैरिजन करके हम बताने का प्रयास करेंगे कि यह टॉपिक जो मैंने बताया उस टॉपिक में वहाँ पे कौन कौन क्या है, इस तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लर्नर्स नेक्स्ट पेज पे आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जो हमारा एक एजेंडा होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हाय लर्नर्स, देख रहे हैं यहाँ पर एक एड्रेस है, यह एड्रेस उस कंपनी का, उस फर्म का, उस संस्था का है जो ऑर्गेनाइज करती है, और जो है विकास पब्लिशिंग हाउस, बाली रोड, 36 GSM बिल्डिंग, मेरठ। और लर्नर्स यहाँ पे आते हैं तो देख रहे हैं लिखा है हमारा एक टाइटल, जो टीम मीटिंग एजेंडा का एक कह सकते हैं कि एक टाइटल है। डेट के बारे में बात करते हैं, लर्नर्स लिखा 4 फरवरी 2019, और यहाँ पे लिखा प्लेस, यहाँ पे जो बात करता है रूम नंबर 4 मेन बिल्डिंग, अर्थात जो विकास पब्लिशिंग जो हाउस है उसमें 4 तारीख फरवरी को यहाँ पे एक मीटिंग होना है, जो रूम नंबर 4 जो मेन बिल्डिंग है। लर्नर्स यहाँ पे देखने का है मीटिंग रोल्स, जो मीटिंग के मुख्य भूमिका के रूप में है वो कौन कौन है। जो होस्ट के रूप में है वो श्री राजू मानिंग राव, जो फैसिलिटेटर के रूप में है मिस्टर सुजाता जया हैं, जो टाइम कीपर के रूप में है मिस देववानी शर्मा हैं, जो नोट टेकर के रूप में है मिस रीता राव हैं। लर्नर्स इसके अलावा भी प्रेजेंट मेंबर, उसके अलावा भी जो मेंबर्स वहाँ पे उपस्थित हैं उनके भी नाम वहाँ पर बताए जाएंगे। लर्नर्स आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मीटिंग ऑब्जेक्ट, मीटिंग की क्या क्या उद्देश्य आने हैं वहाँ पे। टू रिव्यू द मिनट ऑफ द प्रीवियस मीटिंग के उद्देश्य को देख करके यहाँ पे मीटिंग को उद्देश्य को तय किया गया है कि ये चीज़ था पिछला। लर्नर्स आगे लिखा है फाइंडिंग वेज टू इंक्रीज सेल्स इन नॉर्दर्न रीजन, अर्थात उत्तरी क्षेत्र में जो हमारा खोजने का तरीका है, किस तरीके के सेल में हमारा इंक्रीज हुआ
उस पे ही हमारा उद्देश्य के रूप में यहाँ पर बताया गया है। लर्नर्स यहाँ कर एक्सप्लोशन ऑफ न्यू एंड इनोवेशन आइडिया, और इस कार्य को करने के लिए नए नए तरीके, नए नए जो विचार है उसका खोज करने के रूप में यहाँ पे लर्नर्स। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे चाहे तो उद्देश्य हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमको कौन कौन सी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, वो हम यहाँ पे चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। लर्नर्स अगला यहाँ लिखा है नेक्स्ट मीटिंग एंड डेट प्लेस, और वहीं पर हम बता देते हैं कि जो अगली मीटिंग इस पर्पस को लेकर के हमें रखनी है उसको भी यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं। अब हमारे यहाँ से एजेंडा स्टार्ट होता है। जो एजेंडा लिखा है इसके लिए टाइम टेबल बनाया है कि कितने मिनट तक कौन हमारा काम और कौन आइटम कितने हैं, किस तरीके से किए जाएंगे, ये हमारा यहाँ बताने का प्रयास किया जाएगा। लर्नर्स देखते हैं यहाँ पर लिखा है एजेंडा में, यहाँ पे आइटम है, सॉरी टाइम है, आइटम है, और यहाँ पे टाइप ऑफ एक्शन है। तो पहला हमारा जो स्टार्ट होता है जो 4 फरवरी को जो हमारा मीटिंग होना है वो 9 बजे यहाँ पे कॉलिंग किया गया है। पहले हमारा होगा स्वागत का कार्य होगा, फिर परिचय के रूप में बताएंगे, फिर उसके बाद जो प्रीवियस हमारा जो मीटिंग है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इतने में हमको पूरा इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करना है, और इसको करने के लिए लर्नर्स हमारा 15 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। आगे आते हैं। 9 बजे से स्टार्ट होगा, 15 मिनट तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें वेलकम होगा, इंट्रोडक्शंस होगा, मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, पिछले मीटिंग को लेकर के हम बताने का प्रयास करेंगे। लर्नर्स आगे यहाँ पे देखेंगे 9:15 पे जो मेरा एक्शन एंड प्लान अपडेट, जो हमारा उस मीटिंग को लेकर के उद्देश्य के रूप में जो कार्य है, जो मुझे अपडेट बताना है, उस पर हम डिस्कशन के रूप में वहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे। उसके तुरंत जो 45 मिनट तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद लर्नर्स आगे बताने का प्रयास कर रहा है 10:15 पे एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडिया ऑफ ग्रोथ, मतलब विकास के हम कह सकते हैं कि एक नए चरण के रूप में जो विचार है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और 10:15 से चल करके क्या करेगा 11:15 तक चलेगा। और लर्नर्स 11:15 से मेरा एक और यहाँ पे डिस्कशन हम क्या करेंगे जिसके रूप में हम डिस्कशन का जो समय रखेंगे वो लगभग 15 मिनट का होगा। उसके बाद से लर्नर दोपहर होने तक, जैसे लिखा है यहाँ पे नून देख रहे हैं, 12 बजे क्या करेंगे कंप्लीट मीटिंग इवेल्युएशन एंड अर्जन, और इस तरीके से उस पर पूरा हम दोपहर के समय हम उसकी मीटिंग पे लेकर के मूल्यांकन करेंगे, क्या छोड़ा क्या पाया, इस सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कशन के। लर्नर्स इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी मीटिंग है इस तरीके से हमारी ये दोपहर के बाद समाप्त हो जाती है। सो लर्नर्स नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड दिस टॉपिक। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।